Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, right? Okay, so in the last video we started with the new chapter number 5, types of houses, right? Okay, so in the last video what did we study? Okay, we studied types of houses. We started with the activity where animals and birds we had to write the names of their homes, right? Then we saw what is the definition of house. Why do we need house? Because we need house because it gives shelter from the different weathers and seasons, right? What is the spelling of shelter? SHELTER, shelter. Yes. Then we saw the basic 2 types of houses. Yes. Which were they? Kacha house and Pakka house, right? So what are Kacha houses? Which are made of temporary material. ठीक है, जो temporary material से घर बनता है उसे हम बोलते हैं कच्चा हाउस. जो permanent material से बनता है उसे हम बोलते हैं पक्का हाउस. ठीक है. कच्चा हाउस कहाँ मिलता है हमें? ज़्यादातर ये कहाँ बनते हैं कच्चे हाउसेस? विलेजेस में. यस. और पक्का हाउसेस दे आर मोस्टली फाउंड इन cities and towns. Okay. What are the materials of kacha houses? Mud, then dry leaves, right? So all this will come in straws. All this will come in kacha houses. Whereas in pakka houses, what all materials are used? Tell me. Yes, wood, steel, then bricks, concrete, right? All these materials are used in pakka houses, right? And in the end of the video also we saw that permanent houses, there are further division of houses. There we will learn permanent houses and temporary houses, right? So today we are going to start with temporary houses. Okay. What are temporary houses? Which are for some स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए है उसको हम बोलते हैं टेम्पररी. टेम्पररी मीन्स वेरी स्मॉल टाइम. ओके, सिर्फ टाइम बीइंग के लिए. ठीक है, परमानेंट नहीं है, वो कभी भी शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, राइट? सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस दिखाए जो कि टेम्पररी हाउसेस में आते हैं, राइट? सो द फर्स्ट वन इज कांति इज अ फार्मर. व्हाट इज ही? Farmer. What does farmer do? He grows fruits and vegetables. Yes. He lives in a hut. What is the spelling of hut? H-U-T, hut. He lives in a hut with his family. It is made of mud and thatch. Okay. What is this? Thatch. T-H-A-T-C-H. T-H-A-T-C-H. Thatch. Okay. So you can see the picture of a hut, okay, which is made up of mud and thatch. These all are thatch, and the base, the walls are made up of mud. Okay. The next one, what does it say? Hari belongs to the desert of Kutch. K-U-T-C-H. R Kutch. कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, है ना? जब आप रण उत्सव में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं ना, डेजर्ट है. तो वो डेजर्ट में कौन सा घर पाया जाता है? हरी. वी विल स्टडी हियर. हरी बिलोंग्स टू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. अब हमारे कच्छ के जो वहाँ पे विलेजेस हैं उनकी तरह ही हरी भी एक लड़का है जो कच्छ के डेजर्ट को बिलोंग करता है. बिलोंग मीन्स ही स्टेज देयर. ओके. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बिलोंग? B-E-L-O-N-G-S. belongs. Okay. Belongs to the desert of Kutch. His grandparents are nomads. What is this? Nomads. N-O-M-A-D-S. Nomads are type of आदिवासी जो घूमते रहते हैं. ठीक है. And live in a tent. What is it? Tent. T-E-N-T. Tent. A tent is made of fabric like canvas or nylon. ठीक है, ये एक फैब्रिक से बनता है. ओके, लाइक कैनवास और नायलॉन. नायलॉन फैब्रिक से या कैनवस की तरह ये टेंट बनते हैं. ओके. सो
अंडरस्टूड दिस पॉइंट. देन द नेक्स्ट, अब क्या होता है ना, टेंट आप देखते हैं जब आप कच्छ रणोत्सव लगता है तो बहुत सारे टेंट लगते हैं. जब रणोत्सव खत्म हो जाता है तो वो टेंट टूट जाते हैं. तो उसी तरह हरि के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी ऐसे ही टेंट में रहते थे, जो सीजन के अकॉर्डिंगली या जब उनका मन पड़े वो उसको वापस फोल्ड करके जहाँ उन्हें दूसरी जगह जाना हो वो जा सके. ठीक है. और क्यों इसे फोल्ड कर सकते हैं? क्योंकि जो टेंट है वो फैब्रिक से बना है. किससे बना है? फैब्रिक से बना है. राइट. नेक्स्ट, अजय लिव्स इन कश्मीर इन अ हाउस बोट. ठीक है. अब कश्मीर में आप वहाँ पे गुलमोहर नदी जो है, ठीक है, ठंडी बहुत है. फिर वुड जो है वो हमें वार्म रखती है. तो यहाँ पे एक और टेम्परेरी हाउस का टाइप है, वो है हाउस बोट. ठीक है. बोट के अंदर हाउस बनाया है. अजय लिव्स इन कश्मीर इन अ हाउस बोट. इट इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस बिल्ट ऑन अ ह्यूज बोट. बहुत बड़ी बोट पे ये हाउस बनाया है. इट फ्लोट्स ऑन वाटर. टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जैसे बोट जाती है वो वैसे ही वो हाउस भी उसके साथ साथ जाता है. टेम्परेरी एक जगह पे फिक्स नहीं है. ठीक है. समझ में आया ये टेम्परेरी हाउस में क्यों इंक्लूड है? क्योंकि एक जगह उसका फिक्स नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, रेहाना इज अ जिप्सी गर्ल. शी लिव्स इन अ caravan with her family. ठीक है. Gypsy girl means again somebody who is moving from one place to another. ठीक है. तो क्या लिखा है? रेहाना is a gypsy girl. She lives in a caravan. Caravan. What is the spelling of caravan? C-A-R-A-V-A-N. Okay. With a family. It is a house on wheels. ठीक है. जैसे आपने स्वदेश पिक्चर देखी होगी, राइट. शाहरुख खान एक बड़ी सी बस लेके जाता है और उसी बस के अंदर उसका पूरा घर होता है. तो उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है, कैरावान. ओके. C-A-R-A-V-A-N. ओके. देन द लास्ट वन इज, अब हमने देखा सबसे पहले क्या देखा कि एक विलेज में हट होता है. ठीक है. फिर डेजर्ट में टेंट देखे. फिर देखा बोट के ऊपर एक घर बना है, हाउस बोट. ठीक है. उसके बाद हमने देखा व्हील्स पे एक घर देखा जिसका नाम है कैरावान. एंड द लास्ट वन, सोमू इज अ बेगर. सोमू इज अ बेगर. He has no money to build a proper house. अब उसके पास प्रॉपर हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं है. क्यों? क्योंकि वो गरीब है, बेगर है. ठीक है. He lives in a shack. What is the spelling of shack? S-H-A-C-K. Shack. It is a shelter made of waste materials such as wood pieces, broken drums, क्लोथ पीसेस एसेट्रा. झोपड़पट्टी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको. जैसे झोपड़पट्टी होती है वैसे ही शैक होता है, जो वेस्ट मटेरियल यहाँ वहाँ वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, वो लोग वो ये वेस्ट मटेरियल को अच्छे से उठा के प्रॉपरली उसको साफ करके उससे ये घर बना लेते हैं. और इस घर को क्या बोला जाता है? शैक. S-H-A-C-K. शैक. ओके. स्लम एरियाज में बहुत मिलता है. So the last temporary type was shack. So children, how many temporary house we have studied? 5. One is hut, then tent, then houseboat, then caravan, and the last one is shack. Okay. So children, in this video we will learn only this much. About permanent houses we will learn in, and special houses we will learn in next video. Till then, read the chapter, write the hard words in your rough book 5 times and learn them. Okay. Till then, stay home, take care, goodbye.